ریاستی وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے کہا کہ امید پورٹل پر صرف تفصیلات درج کرنا کافی نہیں ہے بلکہ ہر وقف جائیداد کو بغیر کسی غلطی کے دستاویزی شکل دینا ضروری ہے۔ تلنگانہ وقف ٹریبیونل نے امید پورٹل پر اوقافی جائیدادوں کے اندراج کے لیے مزید 3 ماہ کا وقت دیا ہے اور اس سلسلے میں تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کو احکامات جاری کیے ہیں۔ وقف ٹریبیونل کی جانب سے 3 ماہ کی توسیع کرنے کے بعد ریاستی وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں ایک اہم اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں حکومت کے مشیر محمد علی شبیر، ٹمریز کے چیئرمین فہیم قریشی، وقف بورڈ سی ای او محمد اسد اللہ، حج کمیٹی کے چیئرمین مولانا خسرو پاشا، سیکریٹری اقلیتی بہبود بی شفیع اللہ و دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر ریاستی وزیر نے کہا کہ امید پورٹل پر اپلوڈ کرنے کے لیے مزید 3 ماہ کا وقت دیا گیا ہے اور اس دوران ریکارڈز کو احتیاط سے جمع کرنے، تصدیق کرنے اور ڈیجیٹلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ریاستی وزیر کا کہنا تھا کہ امید پورٹل پر صرف اوقافی جائیدادوں کی تفصیلات درج کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہر وقف جائیداد کو بغیر کسی غلطی کے دستاویزی شکل دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ تمام متعلقہ محکموں، متولیان اور شراکت داروں کو اس سہولت سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ تمام وقف جائیدادوں کا تحفظ ہو اور ان کی تفصیلات امید پورٹل پر اپلوڈ کی جائیں۔ وقف ٹریبیونل کی جانب سے وقف جائیدادوں کے اندراج کے لیے 3 ماہ کا وقت دینے کے بعد ریاستی وزیر کی صدارت میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں انتہائی اہم اجلاس منعقد ہوا، لیکن حیرانی کی بات یہ رہی کہ وقف بورڈ صدر نشین سید عظمت اللہ حسینی نے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ انہیں اجلاس میں غیر موجود پا کر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید وقف بورڈ کے چیئرمین کو وقف جائیدادوں کے تحفظ کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ غیر سنجیدہ ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وقف بورڈ تحلیل ہو جائے گا، اسی لیے چیئرمین اجلاس سے دور رہے۔ وقف ٹریبیونل نے تو اندراج کے لیے مزید مہلت دے دی ہے، لیکن کئی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ویب سائٹ کارکرد رہے گی؟ یعنی کیا امید پورٹل بحال ہوگا؟ نئی مساجد اور قبرستانوں کا اندراج کس طرح سے کیا جائے گا؟ 3 ماہ کی مدت میں 16,500 اندراجات کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ یہ سارے ایسے سوالات ہیں جس کا جواب صدر نشین وقف بورڈ سید عظمت اللہ حسینی کو دینے کی ضرورت ہے، لیکن وہ تو اجلاس سے خیر حاضر رہے۔ تلنگانہ وقف ٹریبیونل نے آئندہ سماعت 19 جنوری 2026 کو مقرر کی ہے اور سماعت کے دوران توسیع کی گئی مدت میں درج کی جانے والی جائیدادوں کی تفصیلات اور اندراج کے کام کے موقف کو ٹریبیونل میں پیش کرنے کو کہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ریاستی وزیر برائے اقلیتی بہبود کی صدارت میں تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ اور متعلقہ ادارے کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کس طرح سے 16,500 اوقافی جائیدادوں کا امید پورٹل پر اندراج کیا جاتا ہے، کس طرح سے اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ بھی جو ہے وہ ایک دم بہت الگ الگ جگہوں پہ اسکیٹرڈ ہے، ریونیو میں ہے، کہیں انڈومنٹ ڈپارٹمنٹ میں اور کہیں اور ایسے ڈپارٹمنٹ، تو اس میں ایک ساتھ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا اور 6 مہینے کے ٹائم میں اتنا بڑا وقف بورڈ کا جو کام ہے ہو نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ میں ہمارے آنریبل سی ایم صاحب ریونت ریڈی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ انہوں نے پی ایم کو بھی لیٹر لکھا تھا، پھر منسٹری کو بھی لیٹر لکھا تھا، بٹ لیکن وہاں پہ اس کے اوپر کوئی زیادہ وہ لوگ وہ آنسر جواب نہیں دیے، بٹ لیکن ہم نے ہماری طرف سے، میں نے بھی لکھا اور ہماری طرف سے پوری کوشش ہوئی کہ امید پورٹل تو جلد سے جلد ہم اس کو کمپلیٹ کریں۔ اور یہ بھی ہے کہ ایکسٹینشن تو ہم کو وہاں پہ ملا نہیں تھا، بٹ سپریم کورٹ نے جب سپریم کورٹ میں اپروچ ہوئے تو سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تو کوئی انہوں نے پرمیشن گرانٹ نہیں کیا، بٹ لیکن کہا ہے کہ آپ جو بھی اپیل ہے آپ کے وقف ٹریبیونل پہ آپ کر سکتے۔ تو ہم وقف ٹریبیونل میں گئے اور وہاں پہ ہم کو 3 مہینے کا ایکسٹینشن ملا، اور وقف ٹریبیونل نے بھی یہ بھی کہا ہے کہ یہ پورٹل کو کھولنا چاہیے امیڈیٹلی، اور ہم اسی وجہ سے ہم کریں۔ یہ تھوڑا سا مجھے بتانا تھا۔ شہر حیدرآباد کے کوٹھی علاقے میں واقع ویراناری چاکلی علما وومن یونیورسٹی میں فلموں کی شوٹنگ کے دوران طالبات کے ساتھ غیر مہذب سلوک کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔
कोटी में वाक़ वीरा नारी चाकले इल्लमा वुमेंस यूनिवर्सिटी में फिल्मों की शूटिंग के दौरान तालिबात के साथ गैर मुहज़्ज़िब सलूक किए जाने का इंकशाफ हुआ है। तालिबात ने बताया कि पाठ शक्ति फिल्म की शूटिंग के दौरान यूनिट के अरकान ने उनके साथ बदतमीज़ी की। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि 2 तालिब इल्मों को अदाकारा श्री लीला के साथ साइड रोल देने का लालच देकर उन तालिबात को एक कारवान में कैद किया गया था। సో మేము యూజీ స్టూడెంట్స్ అయినప్పటికీ మాకు లాస్ట్ ఇయరే ఇది ఓయూ నుంచి డివైడ్ అయ్యి మాకు సపరేట్ యూనివర్సిటీ అయింది. సో ఇప్పుడు పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మా పీజీ అంటే మా సీనియర్స్కి హాస్టల్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఉంది. అక్కడ మెస్ ఇన్ఛార్జ్ అయిన వినోద్ అని ఆయన సో మా సీనియర్స్ తోటి చాలా మిస్బిహేవ్ చేస్తున్నారని ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది. సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ థింగ్ ఒక వాయిస్ రికార్డింగ్ షీ టీమ్కి వెళ్ళింది. దాంట్లో ఆ అమ్మాయి చెప్పిన స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే మేము వీసీకి ప్రిన్సిపల్కి కంప్లైంట్ ఇచ్చినాము, అయినప్పటికీ వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకోవడం లేదు, సో మేము డైరెక్ట్గా ఇలా షీ టీమ్కి అప్రోచ్ అవుతున్నామని వాళ్ళు చెప్పారు. సో అదే ఇష్యూ తీసుకొని మేము ఇక్కడికి రావడం జరిగింది, వీసీతో మాట్లాడడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇది ఒక ఇష్యూ కాదు సార్, ఆల్రెడీ మేము ఇక్కడ లోపల చాలా ఇష్యూస్ ఫేస్ అవుతున్నాం. ఇక్కడ దర్బార్ హాల్ అని చెప్పేసి బ్రిటిష్ రూల్ అప్పటి నుంచి ఉందని చెప్పేసి ఇక్కడ షూటింగ్కి పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నారు. కానీ పర్మిషన్ ఇస్తున్నప్పుడు షూటింగ్ ఏరియా వాళ్ళు కొంచెం సెక్యూరిటీ పెట్టాలి కదా మాకు కూడా, ఎందుకంటే ఇది ఉమెన్స్ యూనివర్సిటీ, అందరూ ఆడపిల్లలే ఉంటారు. ఏమైందంటే ఇష్యూ, 2 అమ్మాయిలని మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో యాక్టింగ్ ఛాన్స్ ఇప్పిస్తాము, మీకు ఈ షూటింగ్లో మిమ్మల్ని యాక్టింగ్ రోల్స్ ఇప్పిస్తామని చెప్పేసి हुकूमत तेलंगाना के बशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार के एक सरकारी तकरीब में खातून डॉक्टर का हिजाब हटाने की शदीद मजम्मत की है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अपनी रिहाइशगाह पर 1283 आयुष डॉक्टर्स को तक़र्रुरनामे हवाले किए। इस दौरान उन्होंने एक खातून डॉक्टर का हिजाब हटाया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मुख्तलिफ गोशों से नीतीश कुमार पर नुक्ताचीनी की जा रही है। कांग्रेस रहनुमा व साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने नीतीश कुमार की इस हरकत पर अपना शदीद रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने 9 दफ़ा हलफ लिया है वो रियासत के चीफ मिनिस्टर हैं और खातून का हिजाब इस तरह से हटाना अच्छी हरकत नहीं है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि वो इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का दस्तूर हिजाब के साथ तालीम जारी रखने की इजाज़त देता है। नीतीश कुमार जो सीएम के ओहदे पर फायज हैं उन्हें दस्तूर की हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन उसके बजाय वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। हुकूमत के मशीर ने कहा कि लोग ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार का जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया है और उन्होंने जो हरकत की है उससे ये वाज़ेह हो रहा है कि उनका जहनी तवाज़ुन वाक़ई बिगड़ा हुआ है। अगर नीतीश कुमार का जहनी तवाज़ुन ठीक है तो उन्हें फ़ौरन माफ़ी मांगनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी जो बड़े सीनियर आए थे, बहुत बड़े कई ज़माने के सीनियर चीफ मिनिस्टर होते हुए कल जिस तरीके से एक मुस्लिम डॉक्टर लड़की का बुरखा और हिजाब हटाने की जो कोशिश करे, जो हरकत करे, वो काबिल मज़म्मत है। हम सब उसको कंडम कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप फौरी उस लड़की से, उस कौम से माफ़ी मांगे, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा दस्तूर हमको इजाज़त दे रहा है कि हम हिजाब के साथ, पर्दे के साथ हमारी तालीम वगैरह हम जारी रख सकते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको इजाज़त दे रहा है। आप सीएम होते हुए कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करने के बजाय आप खुद बुर्का या हिजाब हटा रहे हैं, ये काबिल मज़म्मत है। लोग कह रहे थे, हम भरोसा नहीं कर रहे थे कि आप कुछ मेंटली प्रॉब्लम हो गया है। इससे मालूम हो रहा है कि रियली आपका मेंटली आप बैलेंस खो गए, आप बैलेंस नहीं है। अगर वाकई आप मेंटली बैलेंस है तो फौरी अपोलोजाइज़ करिए, माफ़ी मांगिए कि जो बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने खबरदार किया है कि अगर पुलिस कांग्रेस लीडर्स और कारकुनान के तशद्दुद की तमाशाई बनी रही तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने मंगल को खबरदार किया है कि अगर कांग्रेस की जानिब से बीआरएस के खिलाफ तशद्दुद किया गया और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि बीआरएस के कारकुनान बटला बालराजू और उनकी अहलिया जी भारती को सिकंदराबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। केटीआर ने अस्पताल पहुंचकर दोनों की मिजाज पुरसी की। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि पिछले 2 सालों में रियासत भर में
BRS کارکنان اور رہنماؤں پر حملے ہو رہے ہیں۔ گرام پنچایت انتخابات کے دوران کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے انتخابات کے دوران بڑھتی کشیدگی پر ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ BRS انصاف تک اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ KTR نے پولیس کے رویے پر بھی تنقید کی اور کہا کہ افسران کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ عوام کی خدمت پر مامور ہیں، کانگریس پارٹی کی خدمت پر مامور نہیں ہے۔ KTR نے متاثرین کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کروائی ہے اور یہ بھی اعلان کیا ہے کہ BRS متاثرین اور دیگر زخمی کارکنان کے تمام طبی اخراجات بھی برداشت کرے گی۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے نئی دہلی میں سونیا گاندھی سے ملاقات کرتے ہوئے تلنگانہ رائزنگ 2047 ویژن دستاویزات پیش کیے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی دہلی کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے منگل کو کانگریس کی سرکردہ قائد سونیا گاندھی سے ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے تلنگانہ رائزنگ 2047 ویژن کے دستاویز سونیا گاندھی کو پیش کیے اور تلنگانہ میں 8 اور 9 دسمبر کو منعقد ہونے والے تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ کی تفصیلات سے بھی سونیا گاندھی کو واقف کروایا۔ وزیر اعلیٰ نے عوامی حکومت کے 2 سالہ دور میں نافذ العمل فلاحی اسکیمات، ریاست کی مجموعی ترقی کے لیے حکومت کی جانب سے کیے جا رہے اقدامات اور منصوبوں سے بھی سونیا گاندھی کو آگاہ کیا۔ سونیا گاندھی نے تلنگانہ رائزنگ 2047 ویژن دستاویز کے مطابق ریاست کو ترقی کی راہ پر مزید آگے بڑھانے کی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ کانگریس رہنما پرینکا گاندھی اور اپوزیشن رہنماؤں نے حکومت کی جانب سے لوک سبھا میں متعارف کروائی گئی دیہی روزگار اسکیم سے مہاتما گاندھی کے نام کو ہٹانے کی سخت مخالفت کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ یونین منسٹر شیوراج سنگھ چوہان نے پارلیمنٹ میں وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آجیویکا مشن بل 2025 متعارف کروایا، جس کے بعد کانگریس رہنما پرینکا گاندھی اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ اپوزیشن کے اراکین نے دیہی روزگار اسکیم سے مہاتما گاندھی کے نام کو ہٹانے کی سخت مخالفت کی۔ مہاتما گاندھی کی تصاویر کے ساتھ مکڑ دوار کے باہر اور مہاتما گاندھی کے مجسمے کے قریب احتجاج کیا گیا۔ ہندو قبرستان کمیٹی کے ارکان نے الوال سرکل کے ترکاپلی بندھم بابی قبرستان کے تحفظ کا مطالبہ کرتے ہوئے مچا بولارم ڈویژن میں دھرنا دیا۔ ترکاپلی بولارم ڈویژن کے BRS لیڈر مہیش کی قیادت میں مچا بولارم ڈویژن میں ہندو قبرستان کمیٹی کے ارکان نے دھرنا منظم کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندو قبرستان تقریباً 2.3 ایکڑ اراضی پر مشتمل تھا، لیکن اس پر قبضے کیے جا رہے ہیں اور صرف 1 ایکڑ اراضی باقی بچ گئی ہے۔ BRS لیڈر نے کہا کہ قبرستان کو ترکاپلی بندھم بابی، پینشن پورہ اور بڈگام جیسے علاقوں کے لوگ کئی سالوں سے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر قبرستان کا تحفظ نہ کیا گیا تو مستقبل میں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کمیٹی کے ارکان سوریا کمار، نرسنگ راؤ، چندر کمار، بھاسکر بالیا، بلارام کولپورم، نرسنگ راؤ و دیگر نے دھرنے میں حصہ لیا۔ وقار آباد ضلع کے راکونڈا گاؤں میں سرپنچ انتخابات میں حصہ لینے والے ایک آزاد امیدوار پر نامعلوم افراد نے چاقوؤں سے حملہ کر اسے شدید زخمی کر دیا۔ تلنگانہ میں جاری گرام پنچایت انتخابات کے دوران پرتشدد واقعات پیش آ رہے ہیں۔ کبھی کانگریس تو کبھی BRS تو کبھی آزاد امیدواروں پر حملے ہو رہے ہیں۔ منگل کو وقار آباد ضلع کے راکونڈا گاؤں میں سرپنچ انتخابات میں حصہ لینے والے ارجن نامی ایک آزاد امیدوار پر نامعلوم حملہ آوروں نے چاقو سے حملہ کیا۔ حملے میں ارجن شدید زخمی ہوا اور اس کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ حملے کے بعد گاؤں میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ پولیس نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اضافی نفری کو تعینات کیا ہے۔ محکمہ عظیم تر بلدی حیدرآباد اور قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی حیدرآباد کے ورثے کی بحالی کے لیے پرعزم پرانے شہر میں واقع
सरदार महल की इमारत को जल्द ही आवाम के लिए खोला जाएगा। कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी GHMC के साथ मिलकर हैदराबाद के विरसे की बहाली के कोशिशों के साथ आगे बढ़ रही है। तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। पुराने शहर में वाक़ सरदार महल की तारीखी इमारत के बहाली के काम आखिरी मराहल में है और उसे बहुत जल्द आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी प्राइवेट फर्म के जरिए उठाए गए बहाली के कामों की निगरानी कर रही है। आपको बता दें कि कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी फिलहाल हैदराबाद भर में 27 बड़े बुरसे की बहाली के मंसूबों की देखभाल कर रहा है, जिनमें से 8 मुकम्मल हो चुके हैं, 6 के काम जारी है, 4 एडवांस मराहल में है और मजीद 17 मंसूबों पर काम किया जाएगा। कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का बुनियादी मकसद रिवायती दस्तकारी पर मबनी तकनीकों और मवाद का इस्तेमाल करते हुए कुतुब शाही दौर से निज़ाम दौर तक की तारीखी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। पुराने शहर हैदराबाद में मुकामी रिहायशियों और इदारों के इस्तेमाल के लिए दक्कन पार्क और 2 स्टेडियम्स को भी बहाल करने का मंसूबा है। सरदार महल के अलावा खुर्शीद जादेड़ी और ओल्ड MCH ऑफिस वगैरह की भी बहाली के काम किए जा रहे हैं। सनत नगर के BRS रुकन असम्बली तलासानी श्रीनिवास यादव ने GHMC की हदबंदी पर वाज़ेह पॉलिसी न होने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, वाज़ेह पॉलिसी न होने की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। साबिक वजीर व सनत नगर रुकन असम्बली तलासानी श्रीनिवास यादव ने GHMC की हदबंदी को लेकर एक बार फिर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये शर्म की बात है कि GHMC की हदबंदी मेयर और डिप्टी मेयर के इल्म में लाए बगैर ही की जा रही है। हुकूमत की जानिब से कोई वाज़ेह पॉलिसी न होने की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मज़ीद 1 महीने का वक्त ले और मुख्तलिफ इलाक़ों में रहने वाले तमाम लोगों की राय हासिल करें और अवामी नुमाइंदों के साथ वोटिंग करवाने के बाद ही हदबंदी पर मुनासिब फैसला ले। समाजवादी पार्टी की रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन ने वज़ीर आला नीतीश कुमार की मुस्लिम खातून का हिजाब उतारने की कोशिश पर कहा कि रियासत के आला तरीन ओहदे पर फायज शख्स की ये हरकत अफसोसनाक है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने एक प्रोग्राम के दौरान मुस्लिम खातून का हिजाब खींचा, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन ने नीतीश कुमार की इस हरकत को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि इस तरह से सरेआम खातून का हिजाब खींचना उसकी इज्जत पर हमला है और वज़ीर आला के इस रवैये से रियासत में ख़वातीन की हिफाजत पर सवाल उठ रहे हैं। इकरा हसन ने मजीद कहा कि रियासत के आला तरीन ओहदे पर फायज होते हुए भी नीतीश कुमार ने ऐसी हरकत की है और उन्हें वज़ीर आला की सेहत के बारे में तशवीश है। देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा ऐसी हरकत हुई, तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो बहुत डेंजरस हो सकता है और उनके हेल्थ इश्यूज पे भी हम लोग बहुत कंसर्न है। और मुझे लगता है कि इतनी गरिमा के पद पर होकर, चाहे हेल्थ रीजंस हो या जो भी रीजन हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। रंगारेड्डी जिले के गंडीपेट मंडल के नेकनामपुर विलेज में औकाफी जायदाद दरगाह हजरत असदुल्ला कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मुतवल्ली के कीमती जायदादों को रिश्तेदारों को फरोख्त करने और मज़कूरा अफराद के वफरासी पर तामीरी काम अंजाम देने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए ने बताया कि रंगारेड्डी जिले के गंडीपेट मंडल के नेकनामपुर विलेज में वाक़ औकाफी जायदाद दरगाह हजरत असदुल्ला शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह कब्रस्तान और मस्जिद की जायदाद औकाफी जायदादें हैं, लेकिन मुतवल्ली गैर मजाज तौर पर रिश्तेदारों और दीगर को वफ़ अराजियात फ़रोख्त कर रहे हैं। मुकामी अवाम ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मज़कूरा अफराद की जानिब से वहाँ पर मुसलसिल तामीरी काम अंजाम दिए जा रहे हैं। लोगों ने सवाल किया है कि क्या मुतवल्ली या ज़िम्मेदार को यह हक़ हासिल है कि वो औकाफी जायदादों को अपनी मर्ज़ी से फ़रोख्त करे या वहाँ पर तामीरी
काम अंजाम दे। ये भी पता चला है कि वफ़द इंस्पेक्टर की जानिब से वहां का मुआयना भी किया गया और वहां तामीरी काम न करने के लिए पाबंद भी किया गया, लेकिन बिना किसी डर व खौफ के वहां पर तामीराती काम अंजाम दिए जा रहे हैं, यानी कि बेखौफ होकर वक्फ जायदाद पर कब्जा किया जा रहा है। अरबाब मजाज से ये ख्वाहिश की गई है कि वो फ़ौरन इसका सख्त नोट ले और वक्फ माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान से ये ख्वाहिश की गई है कि औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। टोली चौकी पुलिस ने पैरामाउंट कॉलोनी में एक नौजवान पर हमला करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल है। टोली चौकी पुलिस स्टेशन हदूद में 2 दिन पहले एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई थी। मुतवफ़्फ़ी के अहल खाना की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मोहम्मद इरफान नामी नौजवान पर हमला करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल है। एसीपी टोली चौकी डिवीज़न ने मीडिया को बताया कि मुलजिम शेख बिलाल की बीवी को मकतूल के भाई अदनान ने बदनाम करने की कोशिश की थी और इसीलिए मुलजिम ने अपने बहनोई के साथ मिलकर मोहम्मद अदनान को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था और वो अदनान के घर भी गया था। मोहम्मद इरफान और उनके वालिदैन को धमकियां भी दी गई थी। पुलिस ने बताया कि मकतूल मोहम्मद इरफान ने अपने भाई को बचाने के लिए मुलजिमीन का पीछा किया था और इस दौरान मुलजिमीन और मकतूल के दरमियान बहस व तकरार हुई और शेख बिलाल ने इरफान पर चाकू से हमला किया और वहां से फरार हो गया। एसीपी ने बताया कि मुलजिमीन के कब्जे से चाकू जब्त कर लिया गया है और गिरफ्तार किए गए अफराद को अदालत में पेश किया गया है। इस माहाना 15 तारीख के दिन एक कत्ल का वारदात टोली चौकी पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया है। वो कत्ल के वारदात में मोहम्मद मौलाना नामकारी उनके जो कत्ल हो चुका है, उनके वालिद साहब ने हमारे पास आके कंप्लेंट दिए हैं। वो कंप्लेंट में उसने ये कहा कि इरफान नामकारी एक ऑटो ड्राइवर ने उनका बेटा और बिलाल ने उसको कत्ल कर दिया है और चेस्ट इंजरी करके एक चाकू से मार दिया है। फौरी उसको दवाखाने को लेकर गए थे। दवाखाने में ब्रॉड डेड बोल के वो लोग उनको डिक्लेयर करे हैं। इसमें मालूम हुआ कि मौलाना के कंप्लेंट पे हमारे टोली चौकी पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर रमेश नायक और एडिशनल डिटेक्टिव इंस्पेक्टर बालराज और उनके टीम ने और इसमें मेहनत करके 24 घंटे के अंदर इस कत्ल के लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और वो तहकीकात में आज जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।